लाइव है, यू आर लाइव। म्यूट इसका ओवर कर दें। जी, over to you, Wajiha. Assalamu alaikum, everyone. Let's start our seminar. Assalamu alaikum. I would like to welcome all of you on behalf of Behavioral Support for Exceptional Needs. जैसे कि आप सबको पता है कि आज 2 अप्रैल है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है। तो हमने सोचा कि हम अपनी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपको प्रेजेंट करते हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं। मेरे टीम मेंबर्स हमारे साथ हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। First of all, we have Alia Yasser on board, who is a board certified assistant behavior analyst and an international behavior analyst. उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल्ला हसन, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, जो कि आरबीटी है, और आईबीए की तरफ अपना अपना जर्नी इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। देन वी हैव सारा इसरार. Sara Israr is a clinical psychologist and a speech and language pathologist as well. And last but not the least, we have Asma Ayaz. Asma is an RBT and she is pursuing her master's in ABA. तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया है अबाउट अस, अबाउट आवर टीम। और मैं वजिया मुजीब, मैं ACCA क्वालिफाइड हूँ और मैंने RBT किया है, और मैं भी अपने IBA की सर्टिफिकेशन की टुवर्ड्स वर्क कर रही हूँ। चलें, ओवर टू यू सारा। Assalamu alaikum. My name is Sarah. I'm clinical psychologist and speech language therapist. With that, I have done my MS in clinical psychology, and I have done my coursework as international behavior analysis, and almost about to complete my supervision as well. Ma'am, I cannot see the presentation. So today our topic is reduction of problem behavior. So I'm going to start from my topic. That is, what is ASD? So basically, autism spectrum disorder is a neurological and neurodevelopmental disorder which lasts throughout a person's life. It is known as a spectrum disorder, which means that every child on autism is changed from one another. Like we are having mild, moderate, and severe cases of autism, so we cannot compare them. Like they are changed from one another, so that's why it's called spectrum disorder. The symptom of autism mostly appears in 2 to 3 years of life, and it's mostly common in boys rather than in girls. Like you guys can see in your setups, you guys are working, that it's more common in boys. We are very limited girls who are coming for therapy and who are diagnosed with autism. Sign and symptom of autism is like they are having difficulty in communication. According to the research, 40% of the kids with autism spectrum don't talk at all, and 25% develop some language skill during infancy, but after some time they lost that. They are having speech problems, which include speech delay, language delay. They are having language and comprehension issues. They come with the problem of echolalia, repetition of words, jargon, like self-made words. They talk in robotic speech. Most of the time, they are having problem in pre-linguistic skills, which include their sitting span is not good, their attention is not good, and they cannot maintain eye contact. They're having difficulty in social interaction, which include they cannot maintain, establish a proper communication. They don't have friends. They are limited friends. They don't respond to their name by their first birthday. They cannot play with kids and people. They cannot share the things. They cannot talk with them. They most of the time uh, try to spend time alone. They avoid eye contact. When they are upset, they don't feel comfortable with the people, so they just make themselves alone. They are having restricted and repetitive behavior, interests, and activities, which include repetitive movements. Like most of the kids are having hand flipping, rocking, jumping, and most of them are hyper or hypoactive. They're having certain fixations. Like I'm going to give you an example of my client. Like one of my client,
He was always coming with a straw in his hand. And whenever we try to take it from him, so he start hand banging and hitting us. So he was having fixation with that. Another client who was having fixation with ponies. Other client who was having fixation with dolls. So they are very fixed in their routines and all. They cannot. They Some sounds make them upsets. Like for example, blender sounds, sound music sounds, because they are hyper to them. With that, they're having lack of coordination. Their fine and gross motor skills are sometimes impaired. They're having aggression problems, which include towards themselves and toward other as well. Like towards self is that they do hand biting, head banging, and all. Behavior problems include hyperactivity or hyperactivity, attention problems. With that, they're impulsive and they're having impairment in daily life skills. These symptoms affect their lifespan and different domains of their life, like they're having problem in education, in social communication, in workplaces, even in peer relationship, in sibling relationships, so they cannot maintain them. Toward Now, I'm going to talk about the cause. People, most of the time people are saying that the cause is, not known still, but according to the research, genetic play a role in that, which is, according to the research, identical twins are having more chances of having autism rather than mm, fraternal twins. And sibling of autisms are having double chances of, developing autism later in their life. Heredity also play an important role in this. Like if, for example, a parent is having autistic features, so the kids are probably more chances to have developed that. Prenatal features are advanced parental age, according to the research. During pregnancy, exposure of mother to different chemicals like air pollution, smoking, and some specific drugs and all. Low birth rate of the child, diabetes in mother during pregnancy, and environmental. And environmental causes include parental rejection, family stress, and most common nowadays is screen time. Like you guys know that virtual autism is very common nowadays. Most of the parents are coming in, they are saying that their child was totally okay, their speech was good, but when they start using screen, so they totally get muted. And when they stop the screen, so they're having little communication, that's also get diminished. Comorbid condition with our ASD are intellectual disabilities. 75% of the kids are having intellectual disability. Uh, Ma'am, can you please slides आगे मैम कर दें? Next, please. 25% are having seizure disorders, which include epilepsy and other seizure attacks. 50% are having attention deficit hyperactive disorder. 30% are having language delay. 40% of the people are having depression and anxiety in adolescence and later in their lives. And they're having eating problems and sleep problem. Mostly include restless sleep. They are having insomnias. They cannot sleep more than 8 hours. They are having eating disorders like pica. They are eating non-edible items. Like some of them are eating sands, like toys, and they are just love the toys which are spongy, and they just start putting that in mouth and just start eating it. When we talk about the prevalence, so about 1 in 100 child are having ASD. And in Europe, the estimated prevalence of autism is between 2.42 percentage, and in Asia, it is more than in Europe, like it's 9.3%. In Pakistan, the Pakistan Autism Society declared that there are roughly uh, 350,000 kids who are diagnosed with autism. Let's talk about the treatment. So, in treatment of ASD, there a multidisciplinary team is involved, which include BCBAs, IBAs, clinical psychologists, speech language therapists, occupational therapists, pediatricians, psychiatrists, neurologists, who are all are involved in the treatment. And the therapy include applied behavior therapy, speech therapy, and occupational therapy. In speech therapy,
Speech therapists are working on their speech domain, and occupational therapy, they are working on fine and gross motor skills and their daily life skills. I'm going to explain ABA more in detail. Like it is the scientific study of behavior and its environment. ABA, a systematically applied procedure based on behavioral principle to the instruction and modify and socially significant behaviors. It focuses on increasing positive behaviors like reinforcement procedures. They are increasing the positive behavior of the child. They teach new skills to them, like the child are having problem in social and communication. So with the help of ABA, they develop their speech and social communication. They maintain their behavior, focus on the task and the good behaviors which they are having. Generalization of the behavior. The therapists who are working with them, for example, they are working on the living skill. They start realizing that at home, then at a workplace, then at school, in play area and all. Improving specific behaviors such as academics, adaptive skills, fine and gross motor skills. They are working on hygiene, grooming, domestic capacities, and job competencies as well. ABA is effective way to teach many new skills, as I discussed. It's effective both in individual and group settings. Like you can apply this in individual and with groups as well. It's totally dependent upon the therapist. Like she's going to decide when the child is ready for group therapy. According to the Center of Autism, ABA helps to autistic client improve social interaction, learn new skill, and maintain positive behaviors. It teach them how they are going to be better in their life. The main characteristics of the ABA is emphasized on function of behavior. What is the function of behavior? The therapist and the BCBAs, they are just trying to identify the function of the behavior, that why a specific behavior is occurring. They emphasize of observable and measurable behavior, like they are going to observe the kid, measure the behavior through formal and informal assessment, and then they are going to tell you that why the behavior is occurring. They requires data collection, like as I told you, it's a scientific study, so all the procedures are involved, the proper scientific procedures for which we have to collect the data, and that we have to do the analysis, and then we are going to make goals and like how we are going to treat the child effectively. It change environment to change the behavior. Like in most of the cases, kids are coming, they are taking the therapy, therapists are working with them, speech therapist, behavior therapist, occupational therapist, but when they go home, the environment is totally different for them. So if the parents are not working with them, so how the therapist is going to totally make them independent and make them like totally okay. I remember one of the father came to me and he told me, मैडम मेरा बेटा जो है वो 95% मेरे पास से है, आपके पास से 5% मेरे पास है। मैंने कहा नहीं जी सर, ये 5% मेरे पास है, 95% ये आपके पास है, बिकॉज ही कम फॉर द थेरेपी। ये सिर्फ और सिर्फ जो है तो थेरेपी के लिए 2-3 घंटे के लिए आता है, उसके बाद 24 आवर्स में से मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज विद यू गाइस. So if you guys are not implementing what we are going to teach, what we are telling you, so the plan and the things will not be effective. So we have to train the parents as well, because most of the time they are with the kids. Everyone is accountable for the progress. Everyone means both the parents, every family member, like siblings, they all have to work with the child. Then the child will be having progress in his environment and all the things. As I told you, ABA is not curable. It's sorry, autism is not curable. It's only manageable. I think I have completed my segment of presentation. Now I will pass the floor to Sara, Ms. can I Asma to add continue. something to this? Can I add Yes, something sure, to sure, this? ma'am, Bajia. जैसे कि आपने कहा कि autism is not curable, तो हम ये बताते चलें कि it's not a disease, it's a disorder. It's a different ability. ठीक है? क्योंकि autism is a broad spectrum. Autism spectrum पे जो बच्चे होते हैं बहुत talented होते हैं, उनके hidden talents होते हैं जो कि हमें discover करने हैं. उनको tackle करने का different तरीका है. ABA, Applied Behavior Analysis, is among one of those. Thank you, Sara. Thank you, ma'am. So now we understand that how ABA helps in reducing problem behaviors. Now question arises, how do we know that child is exhibiting these behaviors? What is the reason behind these behaviors? मतलब आपका बच्चा रो रहा है
या आपका बच्चा किसी भी टाइम पे कोई प्रॉब्लम बिहेवियर एग्जिबिट करता है, मारता है, काटता है, या कुछ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम बिहेवियर जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं? So ABA has defined there are 4 functions of behaviors. One is attention. Attention means बच्चे को जब वो प्रॉब्लम बिहेवियर आपको दे रहा है, मार रहा है या काट रहा है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम बिहेवियर, तो मे बी ही नीड्स योर अटेंशन, ही इज डूइंग दिस फॉर योर टू गेन योर अटेंशन. सेकेंड आता है escape. Escape is like a वो उस चीज को अवॉइड करना चाह रहा है, मतलब if you are giving any demand, he don't want to do it, he is trying to escape from that situation, maybe he want to escape from the person. किसी भी चीज से उसको भागना होता है, वो काम नहीं करना होता जिसकी बेसिस पे वो प्रॉब्लम बिहेवियर्स देता है, मतलब रोना, जिस कोई भी किसी किस्म के बिहेवियर. थर्ड आता है टेंजिबल. टेंजिबल मीन्स ही नीड समथिंग, डिजायर फॉर समथिंग, ही नीड टू गेट समथिंग, मे बी कोई टॉय, या कहीं आप बाजार गए यानी अब बच्चे ने वहीं पे ही रोना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आई नीड दिस टॉय, तो ये इसका फंक्शन है कि उसको चीज चाहिए, जिस कॉल्ड टेंजिबल. थर्ड इज ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक में बच्चा जो है वो अपने लाइक उसको वो जो भी बिहेवियर्स कर रहा होता है वो उसको सूद कर रहे होते हैं, उसको रीइंफोर्स कर रहे होते हैं, लाइक फ्लैपिंग या जो भी नेल बाइटिंग, इस तरीके के बिहेवियर्स होते हैं. तो यहाँ तो मुझे समझ में आ गया कि बिहेवियर्स के पीछे फंक्शंस क्या होता है. स्लाइड चेंज कर दें. यहाँ में ये समझ में आ गया कि ये जो बिहेवियर्स हो रहे हैं, जितने भी बिहेवियर्स आ रहे हैं, डेफिनेटली इनके पीछे 4 फंक्शंस हैं. तो अब इन ये तो हमें पता चल गया कि ये 4 फंक्शंस हैं. तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे बच्चा जो ये बिहेवियर्स कर रहा है, इसके पीछे उसका फंक्शन क्या है, वो आखिर क्यों इस तरह का बिहेवियर दे रहा है, क्यों टेंट्रम थ्रो कर रहा है, क्यों मार रहा है, क्यों काट रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं. तो फिर ABA हैज इंट्रोड्यूस फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, जिसमें हम इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग why this behavior is happening, what is the reason behind this behavior, especially what the child is getting from this behavior. तो इसलिए FBA क्या चाहता है, FBA involves antecedent, like what is happening before the behavior. जैसे कि बच्चे ने काट लिया, तो काटने से पहले हुआ क्या था, ऐसा क्या चीज हुई थी जो उसने इस तरह का कोई बिहेवियर किया. और बिहेवियर डेफिनेटली उसने काट लिया कि लाइक फॉर एग्जांपल एंटीसीडेंट में इस तरीके से ले लेके आपने अपने बच्चे के लिए कहा कि यू वांट हिम टू डू सम मैथ वर्क, मगर बच्चे ने क्या किया कि उसने जब जैसी कॉपी खोली उसके बाद उससे वो काम नहीं करना था, ही स्टार्टेड क्राइंग, थ्रोइंग बुक, रोलिंग ऑन द फ्लोर. तो ये इसका बिहेवियर आ गया. कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि आपने उसके बाद उस बिहेवियर को एड्रेस कैसे किया. कि आप बच्चे के पास आए, आपने कहा क्यों रो रहे हो भाई, क्यों इस तरह तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो. तो आपने क्या किया, उसने कहा लाइक उसने डिडंट से एनीथिंग, ही जस्ट लाइक कैरी ऑन विद द बिहेवियर ही इज एग्जिबिटिंग. तो आपने कहा ओके फाइन, डोंट डू दिस वर्क राइट नाउ, विल डू इट सम अदर टाइम. आपने क्या किया कि उसके वो बुक्स बंद करवा दी. तो दिस इज, हमें यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये इसका बिहेवियर इसलिए था कि उसको एस्केप चाहिए था, ही डोंट वांट टू डू द मैथ वर्क. there could be many reasons, maybe उसको वो चीज डिफिकल्ट लग रही हो, maybe उसका he wanted to do something else and you ask him to do the math work. इस किस्म की चीजें हो सकती हैं. तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि इसका जो बिहेवियर था जब आपने उसे काम करने के लिए कहा, तो it was crying इसलिए था कि he want escape from that behavior. उसके बाद क्या होता है FBA में कि हम इस डेफिनेशन को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि why this behavior happened, what was the एंटीसीडेंट, कि क्या हुआ बिहेवियर से पहले, क्या बिहेवियर था, और फिर क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हुए. उसके बाद हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लाइक सारा डेटा ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को, और इंटरव्यू करते हैं पेरेंट्स से, और इसके अगर कोई और प्रोफेशनल्स के साथ वो काम कर रहा हो, लाइक स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तो सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है. और उसके बाद with that all we make a behavior intervention plan, BIP. BIP is a strategy कि अब जब हमें ये प्रॉब्लम बिहेवियर हमारे सामने आ गया है, अब हमने सारे समझ में आ गया कि क्या रीजंस हो रहे हैं, क्या वजूहात हो रही हैं, सारा हमारे पास डेटा कलेक्ट हो गया है. अब हम प्लान करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजीज हमने यूज करनी है कि ये प्रॉब्लम बिहेवियर इसको किस तरीके से खत्म किया जाएगा या कम किया जाएगा. तो क्या ऑल्टरनेटिव बिहेवियर हम देंगे, क्या रीइंफोर्समेंट दी जाएगी, किस तरीके से इन्फोर्समेंट दी जाएगी, क्या स्केड्यूल्स होंगे रीइंफोर्समेंट के, और किस तरीके से डाटा कलेक्ट किया जाएगा, किन पॉइंट्स पे डाटा कलेक्ट किया जाएगा. तो ये सब कुछ बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान में आता है. फिर इसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है. इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं हम कि जितना जो हमने इसके साथ स्ट्रेटेजी अप्लाई की है, इज इट वर्किंग, इज इट पॉजिटिवली वर्किंग, और डू वी नीड एनी चेंज, और
like she should carry on with this. So this is the function of this is how we do functional behavior assessment. किसी भी behavior को जानने के लिए उसको पहले उसको समझना जरूरी है कि उसके पीछे function क्या है, और उसके बाद उन functions को भी समझना चीजें जरूरी है ताकि हम behavior intervention plan create करें और फिर further उसको उस पर workout करें. Thank you. चलिए next I would like to invite Mr. Abdullah Hassan. जी Abdullah, let's start. Assalamu alaikum. The topic that I will be discussing is antecedent based interventions and how to use them to manage challenging behavior. So basically अभी just आपको मिस आसमा ने जिस तरह बताया कि antecedent क्या होता है. Antecedent is a behavior that occurs before an event. कोई event occur होता है, उससे पहले जो behavior बच्चा show करता है that is an antecedent. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बच्चे से कहा कि प्ले टाइम इज़ ओवर और बच्चे ने टेंट्रम शो किया, क्राइम बिहेवियर शो किया. तो क्राइम बिहेवियर शो करने से पहले आपने क्या कहा था? आपने उसको एसटी दी थी कि प्ले टाइम इज़ ओवर. दैट एसटी दैट यू हैव गिवन टू द चाइल्ड इज़ एंटीसीडेंट. सो बेसिकली द एडवांटेज ऑफ एंटीसीडेंट बेस्ड इंटरवेंशन इज़ कि चैलेंजिंग बिहेवियर आने से पहले ही हम उसको मैनेज कर लेते हैं. So the terminologies that I've highlighted over here are interfering and task behavior. So basically interfering behaviors are challenging behavior जो hurdle create करते हैं कोई भी new skill सीखने में, और task behavior are the new skills जो हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं. So antecedent based interventions हम use करते हैं interfering behavior को reduce करने के लिए और task behavior को increase करने के लिए. The second point is, जैसे मिस आसमा ने आपको बताया कि हम FPA करते हैं फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, ताकि हमारे पास फंक्शन आ जाए बिहेवियर का, चैलेंजिंग बिहेवियर का, जिसको हम इंटरफेयरिंग बिहेवियर कह रहे हैं, ताकि हम कोई इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन एंटीसीडेंट बेस्ड इंटरवेंशन फॉर्मुलेट कर सकें. और इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हम इंटरवेंशन ड्राइव करते हैं दैट आर बेस्ड ऑन SDs एंड MOs. SDs और MOs को मैं आगे स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा. So basically there are many antecedent based interventions. हम just अभी जो major 5 interventions हैं उनको discuss करेंगे. The first one is modifying the MOs and SDs. The second one is non-contingent reinforcement, then high P, low P sequences, then functional communication training and visual schedule. So the first one is modifying SDs and MOs. इसके लिए हमें दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि SD क्या होता है और MOs क्या होता है. SDs are basically commands जो कि रिस्पॉन्स को इवोक करते हैं और उसके बाद आप उस बच्चे को कोई रेनफोर्समेंट देते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफोर्समेंट होती है उसमें. द सेकेंड थिंग इज़ मोटिवेटिंग ऑपरेशंस. मोटिवेटिंग ऑपरेशंस इज़ द नीड दैट इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ रेनफोर्सर. एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रमज़ान चल रहा है, हम अफ्तारी करते हैं, पूरा दिन हम कुछ नहीं खाते. अफ्तारी के टाइम हमारे सामने रूह अफ़ज़ा आता है. दैट रूह अफ़ज़ा का ग्लास इज़ आर SD कि हमने पीना है. और मोटिवेटिंग ऑपरेशन क्या होगा? के पूरा दिन हमने पानी नहीं पिया, हमें प्यास लग रही है, अफ्तारी के टाइम हमारी मोटिवेटिंग ऑपरेशन पीक पर होगा. तो दैट इज़ द मोटिवेटिंग ऑपरेशन. सो बेसिकली हम करते ये हैं कि एंटीसीडेंट बेस्ड इंटरवेंशन में जिसमें हम मॉडिफाई करते हैं SDs और मैम पिछली स्लाइड ही रहने दें. हम करते ये हैं कि हम SDs को मॉडिफाई करते हैं, SD को चेंज करते हैं ये चेक करने के लिए कि उसकी वजह से तो चैलेंजिंग बिहेवियर नहीं आ रहा. फॉर एग्जांपल हमने बच्चे से कहा लेट्स डू होमवर्क और बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, तो वी कैन चेंज दी SD. हम बच्चे से कह सकते हैं वी कैन चेंज दी SD. हम कह सकते हैं यू कैन प्ले फॉर 15 minutes देन वी कैन डू होमवर्क. तो हमने SD चेंज की, मोस्ट प्रोबेबली बच्चे का चैलेंजिंग बिहेवियर नहीं आएगा. सो इसी तरह मोटिवेटिंग ऑपरेशन जो है उसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर बच्चा टॉय के साथ प्ले कर रहा है और उसकी वजह से उसका चैलेंजिंग बिहेवियर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको टॉय 1 घंटे के लिए सपोज दे दिया हमने, और उसके बाद वो सशिएट हो गया, उसकी नीड पूरी होगी, उसके बाद हम उसको
होमवर्क के लिए कह रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चा चैलेंजिंग बिहेवियर में इंगेज नहीं होगा. Next slide. The second intervention that we are going to talk about is non-contingent reinforcement. Non-contingent reinforcement में we have to focus on just one thing. हमने response को नहीं देखना, हमने schedule of reinforcement को देखना है. Response regardless के positive है या negative है, हमने अपने reinforcement के schedule को देखना है. For example, अगर हम fixed schedule पे move कर रहे हैं और हमने बच्चे से कहा क्लैप हैंड्स, रिगार्डलेस बच्चे ने क्लैप हैंड्स इमिटेट किया या नहीं किया, हमने उसको रिइंफोर्समेंट देनी है. और द लॉजिक बिहाइंड दैट इज़ के अ चाइल्ड विल नॉट इंगेज इन अ चैलेंजिंग बिहेवियर अगर हम नॉन कंटेंजेंट रिइंफोर्समेंट उसको बिहेवियर अगर होने से पहले ही दे देंगे. नेक्स्ट स्लाइड. हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस. हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस को हम हाई पी लो पी रिक्वेस्ट सीक्वेंस भी कहते हैं, इंटरस्पर्स रिक्वेस्ट भी कहते हैं, प्री टास्क रिक्वेस्ट भी कहते हैं. बेसिकली इसमें हम कहते ये हैं कि हम जो हाईली कंप्लायंट्स वाले टास्क होते हैं जिसपे आपको पता होता है कि बच्चे का रिस्पांस आपको फ़ौरन से मिल जाएगा, वो हम पहले करवाते हैं और हम उसके बाद लो प्रोबेबिलिटी का टास्क बच्चे से करवाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने करना ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बच्चे से एक टास्क करवाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए करवाना है, वी हैव टू मेक हिम राइट ए विद अ पेंसिल, और ये लो प्रोबेबिलिटी का टास्क है. तो हम करेंगे क्या, हम 2 to 5 जो मास्टर टास्क होंगे बच्चे से वो करवाएंगे. फॉर एग्जांपल वी विल से टच योर नोज, क्लैप योर हैंड्स, हैंड्स ऑन द टेबल, फोल्ड योर हैंड्स, करवाएंगे द इजी मोस्ट टास्क जो बच्चे के ऑलरेडी मास्टर्ड होते हैं. और उसके बाद हम इमीडिएटली लो प्रोबेबिलिटी का टास्क दैट इज़ कि यू हैव टू राइट ए. नाउ राइट ए हम कहेंगे बच्चे को और बच्चा मोस्ट प्रोबेबली जो है उस पर आपको कंप्लाइंस शो करेगा. हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस हम कब यूज़ करते हैं, जब बच्चे का कंप्लाइंस का इशू होता है या लो कंप्लाइंस होती है या फिर एस्केप और एग्रेशन बच्चा ज़्यादा शो कर रहा होता है, तो उसमें ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है. और इसको हम बिहेवियर मोमेंटम भी कहते हैं कि हम बच्चे का बिहेवियर जो है मोमेंटम हम मेंटेन कर रहे होते हैं कि फ्रॉम हाई प्रोबेबिलिटी वाले टास्क से लो प्रोबेबिलिटी वाले टास्क की तरफ हम मूव कर रहे होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. So, the fourth one is functional communication training. Functional communication training जो है वो almost everyone is working on that. Basically हम इसमें करते ये हैं कि हम बच्चे का जो challenging behavior होता है उसको हम change करते हैं with an alternate या replacement behavior. हम बच्चे को alternate या replacement behavior जिसको हम कहते हैं उसको हम बच्चे को सिखाते हैं. The main thing that we have to focus on is कि जो फंक्शनली इक्वलेंट होना चाहिए आपका जो आप बच्चे को रिप्लेसमेंट बिहेवियर सिखा रहे हैं विद द चैलेंजिंग बिहेवियर. फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको लेट्स सपोज नूडल्स खाने, और नूडल्स खाने के टाइम वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है. तो रोना शुरू कर देता है उस तो हम बच्चे को अल्टरनेट बिहेवियर सिखाएंगे कि यू हैव टू पॉइंट एट द नूडल्स के पैक को आपने पॉइंट करना है. अगर बच्चा वर्बल है तो हम कहेंगे यू हैव टू से नूडल्स, या आप कहेंगे मुझे नूडल्स चाहिए, आपने बच्चे को ये सिखाएंगे. और हम जब बच्चा ये चीज़ बोलेगा तो हम उसको नूडल्स देंगे. सो बच्चे की जो सेम नीड है वो पूरी होनी चाहिए. क्राई करके बच्चा सेम नूडल्स मांगता है तो आप जो अल्टरनेट में बिहेवियर सिखा रहे हैं कि मुझे नूडल्स चाहिए या पॉइंट करने का, तो तब भी बच्चे को नूडल ही मिलनी चाहिए. अच्छा, थिंक लाइक मैंड ट्रेनिंग. आप मैंड बच्चे को करना सिखाते हैं. जैसे आप में से बहुत सारे फेमिलियर होंगे एबल्स के टास्क से, जो एफ की डोमेन होती है जिसके अंदर हम बच्चे को सिखाते हैं. फर्स्ट F1 सिखाते हैं पॉइंटिंग, देन वी मूव ऑन टू रिइंफोर्सर सामने हम रखते हैं और बच्चे से कहते हैं कि व्हाट डू यू वांट, और साथ ही हम वर्बल प्रॉम्प्ट देते हैं, बबल्स या कोई भी उसका एडिबल आइटम होता है, और देन हम मूव ऑन करते हैं इसी तरह. तो दिस इज़ समथिंग कि हम फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग पे ही बच्चे के काम कर रहे होते हैं. और ये हमने बच्चे को डायरेक्टली जो फंक्शनल कम्युनिकेशन होता है वो हमने डायरेक्टली बच्चे को सिखानी होती है. The fifth one that we are going to talk about is visual schedule. Visual schedule basically हम high फंक्शनिंग बच्चों के साथ यूज़ करते हैं. विजुअल स्केजल में जो फर्स्ट चीज़ है वो दैट इज़ डेली स्केजल.
डेली स्केड्यूल बेसिकली हम उन बच्चों में से यूज़ करते हैं जिनको एंजाइटी का इशू हो या एंजाइटी हमने रिड्यूस करनी हो और प्रेडिक्टेबिलिटी को हमने इंक्रीज़ करना हो। इसमें हम बच्चों की ट्रांजिशन जो होती है वो स्मूथली हो जाती है। डेली स्केड्यूल इज़ समथिंग लाइक कि आपने बच्चे का पूरे दिन का जो स्केड्यूल है वो इन विजुअल फॉर्म, इन पिक्चर्स फॉर्म लैमिनेट करवा के या एक चार्ट की शक्ल में आपने बना के रखा होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले उठने के बाद बच्चा क्या करता है, टीथ ब्रश करता है, हैंड वॉश करता है, फेस वॉश करता है, देन ब्रेकफास्ट, देन स्कूल, स्कूल से घर आता है, घर आने के बाद लेट्स सपोज वो थेरेपी सेंटर जाता है या घर में थेरेपीज लेता है या कोई ट्यूटर आते हैं, देन ही हैज़ टू प्ले, देन ही हैज़ टू स्लीप। तो ये सारी जितने भी इवेंट्स उसके पूरे दिन में होते हैं उसके आप विजुअली पिक्चर्स बनाते हैं, चाहे वो एनिमेटेड हों चाहे वो रियल लाइफ पिक्चर्स हों, और आप वो बच्चे को दिखाते हैं। तो उससे ये होता है कि बच्चे की स्मूथ ट्रांजिशन होती है फ्रॉम होम टू स्कूल, फ्रॉम स्कूल टू होम, फ्रॉम होम टू थेरेपी, और इस तरह सो ऑन। द सेकंड, मैम अभी बैक करें। हाँ, द सेकंड थिंग इज विजुअल सपोर्ट फॉर रीडायरेक्शंस। अच्छा, विजुअल सपोर्ट फॉर रीडायरेक्शन इज़ कि हम बच्चे को रीडायरेक्ट करते हैं, बच्चे को समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका बच्चा जो है वो मॉल जाता है, मॉल में जाके भागना शुरू कर देता है। भागना आपके लिए अगर चैलेंजिंग बिहेवियर है तो आप क्या करेंगे, यू विल मेक अ विजुअल क्यू। विजुअल क्यू आप बच्चे के लिए बनाएंगे कि वॉक, सिर्फ वॉक, और बच्चा उसमें सिंपली वॉक कर रहा होगा। दैट इज़ अ विजुअल क्यू। सेम वे अगर बच्चा है बहुत लाउडली शाउट करता है तो हम बच्चे के लिए एक विजुअल क्यू बनाएंगे। जब भी वो शाउट कर रहा होगा तो हम विजुअल क्यू बनाएंगे कि यू स्पीक नाइसली। एक माउथ बना हुआ होगा और स्पीक नाइसली बेशक साथ लिखा हुआ हो, या वो जो पिक्चर है वो इस तरह की बनी हो कि द पर्सन दैट इज ऑन द पिक्चर इज स्पीकिंग नाइसली। बेसिकली इसमें जो चीज़ जो पॉइंट इसमें हमें फोकस करने वाला दैट इज़ कि हम उसमें पॉजिटिव क्यूज़ देते हैं ना कि नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा, जिससे हमने एग्जांपल में बात की, बच्चा मॉल में भागता है तो हम उस विजुअल क्यू ये नहीं बनाएंगे कि डोंट वॉक, डोंट रन, हम ये विजुअल क्यू नहीं बनाएंगे, बल्कि हम क्या बनाते हैं, वॉक। जो पॉजिटिव क्यू है हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। सेम इज इन सेम केस ये है, अगर हम बच्चा शाउट करता है तो हम ये नहीं कहेंगे डोंट शाउट, विजुअल क्यू में हम डोंट शाउट वाला नहीं बनाएंगे, बल्कि हम क्या बनाएंगे, स्पीक नाइसली। तो पॉजिटिव क्यू हमेशा हमने देना होता है। द थर्ड वन इज क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस प्रेजेंटेड विजुअली। ये क्लासरूम सेटिंग में नॉर्मली यूज़ होता है कि क्लासरूम के जो रूल्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप रूल्स होते हैं, सॉफ्ट बोर्ड पे लगाए हुए होते हैं टीचर ने कि क्लासरूम में आना है, यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू डू योर होमवर्क, यू हैव टू रेज योर हैंड, फिर आपकी ब्रेक टाइम होगी, एंड सो एंड सो। तो विजुअली वहाँ से बच्चा देख के उसको आइडिया हो जाता है कि उसकी क्लासरूम के क्या रूल्स हैं और टीचर क्या एक्सपेक्ट कर रही है मेरे से, अप्रोप्रिएट बिहेवियर। द फोर्थ वन इज़ कंटिजेंसी मैप्स। कंटिजेंसी मैप्स ही होते हैं, दीज आर ऑल्सो मोस्टली यूज इन स्कूल सेटिंग। घर में भी यूज़ हो सकते हैं। बेसिकली इसमें होता ये है कि हम बच्चे को दोनों कॉन्सिक्वेंसेस बता देते हैं। एक बिहेवियर है उसका हम कॉन्सिक्वेंस बता देते हैं कि अगर आप ये करोगे तो उसके बाद दिस विल बी योर कॉन्सिक्वेंस, एंड इफ़ यू विल डू एक्स वाई जी तो ये कॉन्सिक्वेंस होंगे। फॉर एग्जांपल, टीचर के साथ काम कर रहे हैं, टीचर कुछ काम करवा रही हैं क्लासरूम में, तो अगर एक बच्चा हैंड रेज नहीं करता तो दोनों ऑप्शन दे देते हैं, लिखा हुआ होता है या विजुअल पिक्चर बनी होती है, इफ़ यू विल रेज हैंड you will get a break, if you will not if you will shout या if you will not raise hand तो you will not get a break। दोनों consequences बच्चे को बता दिए। The fifth one is first then schedule। फर्स्ट देन स्केड्यूल हाई फंक्शनिंग बच्चों के साथ यूज़ करते हैं कि फर्स्ट जो डिज़ायर्ड काम थेरेपिस्ट कराना चाह रहा है, पेरेंट्स कराना चाह रहे हैं, दैट उसकी पिक्चर, और देन जो डिज़ायर्ड काम जो बच्चा करना चाह रहा है, बच्चे का रिइंफोर्सर, बच्चे ने कहीं प्लेग्राउंड में जाना है तो उसकी पिक्चर होगी, तो हम वो दिखाते हैं। तो इस तरह हम बच्चे से कंप्लाइंस जो है वो मेंटेन करते हैं। थैंक यू। Thank you so Alright, much. thank you so much, Abdullah. Yeah, thank you. That was great actually. You know, I was thinking कि आप लोगों ने माशाल्लाह इतना अच्छा presentation दी, इतनी डिटेल में और इतनी you know, आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूंगी कि applied behavior analysis is such a vast field, और हमारा टॉपिक इस तरह का है बिहेवियर रिडक्शन का कि each and everything we cannot cover today. You know, इसके लिए कोई बहुत महीनों की ट्रेनिंग चाहिए होती है, जो कि अभी आपके सामने समराइज करके माशाल्लाह जो हमारा यंग टैलेंट आ रहा है
अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के अंदर। दे आर ऑल माशाल्लाह ज़बरदस्त, सबके सब IBA बन रहे हैं, ऑलमोस्ट एंडिंग प्रोसेस की तरफ हैं माशाल्लाह से। तो दीज आर ऑल टीम मेंबर्स, थैंक यू, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी। और अभी हम थोड़ी देर पहले जिस तरह से बात की, आप लोगों ने देखा ऑटिज्म के सिम्टम्स के बारे में, ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं, अवेयरनेस सेशन है क्योंकि ये रेपिटिशंस हैं, लैंग्वेज डिलेज हैं, एग्रेशंस हैं, सो ऑन। और उसके बाद फिर आपने देखा कि अगर हमने बिहेवियर को टैकल करना है तो सबसे पहले उसके रीजन को ढूंढना पड़ेगा कि बिहेवियर हो क्यों रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट बिहेवियर। ठीक है, अगर आप रीजन पकड़ लेते हैं तो उसके बाद इंटरवेंशन अप्लाई करना है, क्योंकि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंटरवेंशंस कि आप एक साथ सारी की सारी नहीं अप्लाई करते, आप रीजन के हिसाब से फिर वो डिजाइन करते हैं। तो आज का सेशन ये नहीं है कि आप लोगों को ट्रेन कर देगा 100% कि आप अपने खुद से अप्लाई करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है, आपको फिर भी कंसल्टेशन की जरूरत होती है। बट जस्ट इन केस अगर थोड़ा बहुत आप चाहें तो आप घर में ये चीजें ट्राई कर सकते हैं, बट विद कंसल्टेशन, यू नो। और इसमें से जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है आफ्टर जजिंग द रीजन, वो होती है एंटीसीडेंट बेस्ड स्ट्रेटेजीज, यानी कि बिहेवियर को होने से पहले पहले ही आप कुछ कर लें, जिस तरह से अभी अब्दुल्ला ने बताया। तो दैट इज द बेस्ट वे, यू नो। और उसके लिए विजुअल स्केड्यूल्स एंड चॉइस मेकिंग एंड सो ऑन, जो कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया गया, राइट। अब इसके बाद आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंस बेस्ड स्ट्रेटेजी के ऊपर। अच्छा, एंटीसीडेंट बेस्ड स्ट्रेटेजी क्या कहलाती है आपकी? प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज, राइट, कि पहले पहले आपने कुछ कर लिया, दीज आर कॉल्ड प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज। अब जो हमारे हैं कॉन्सिक्वेंस बेस्ड स्ट्रेटेजीज के ऊपर, दीज आर कॉल्ड रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज, यानी अब बिहेवियर हो गया, आपने बहुत कोशिश कर ली, ना हो लेकिन हो गया, आफ्टर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। बिहेवियर हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि इन्फ्लुएंस होता है बाय इट्स एनवायरनमेंट। हम जो जिस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहे हैं, आपके आसपास जो चीजें रखी हुई हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, आप जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं बच्चे के साथ, तभी वो बच्चा बिहेवियर डेवलप करता है, तभी वो बच्चा बिहेवियर शो करता है। अगर आप अपनी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर लेते हैं और अपने रवैये को बच्चे के साथ बेटर कर लेते हैं, तो फिर बच्चे का बिहेवियर भी ऑटोमेटिकली आपके साथ बेटर हो जाएगा। सो सारी की सारी कॉन्सिक्वेंस बेस्ड स्ट्रेटेजीज जो हैं वो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के, जिनके ऊपर बेस करती हैं रीइंफोर्समेंट, एक्सटिंक्शन एंड पनिशमेंट। इसको हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफली, और इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेंगे। सो व्हाट इज रीइंफोर्समेंट? अगर एक बिहेवियर हुआ है, इसके बाद उसको कुछ मिला है, या उस बच्चे ने उस बिहेवियर के थ्रू कुछ हटाया है, यानी कि ही गॉट समथिंग और ही गॉट रिड ऑफ समथिंग, और इस वजह से बिहेवियर नेक्स्ट टाइम वो रिपीट करेगा, या तो वो ज्यादा करेगा या एटलीस्ट रिपीट करेगा, देन वी से दैट रीइंफोर्समेंट हैज अकर्ड। ये बेसिक सी डेफिनेशन याद रख लीजिए कि अगर बच्चा, आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कि वो बार बार हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, so that means there is something which is reinforcing it, something is he is getting out of that behavior or he is removing by doing that behavior, जिसकी वजह से वो बार बार बच्चा कर रहा होगा। इसी तरह से reinforcement प्रॉब्लम बिहेवियर की एग्जिस्ट कर रही है। व्हाट इज एक्सटिंक्शन देन? तो अगर आप सबसे पहले जाएं रीजन के ऊपर और रीजन को कैच करें थ्रू फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, आपने कर ली, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया है कि अच्छा फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा अटेंशन के लिए कर रहा है, या हो सकता है मेरा बच्चा, मैं इसको कोई काम करने को देती हूँ और ये जो है वो उसमें से गायब होना चाहता है, ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ दैट टास्क, तो वो एस्केप के लिए कर रहा है। या फिर हो सकता है वो किसी रीजन भी नहीं हो, बस ऐसे ही अकेला बैठा हुआ है और ऑटोमेटिकली कर रहा है, सेंसरी बिहेवियर्स जो कि बहुत सारे होते हैं। या फिर ये कि कोई चीज लेने के लिए, कोई सिबलिंग के पास कोई चीज है, उसको वो कोई टॉय चाहिए और उसको छीन लेता है और उसके लिए वो उसको हिटिंग करता है और प्रॉब्लम बिहेवियर शो करता है। इन सारे के सारे जो रीजंस हैं, अगर आप उस रीजन को पीछे से रिमूव कर दें तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चे का। ठीक है, सो प्रॉब्लम बिहेवियर के लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्ट्रेटजी एक तो ये कि आपने एंटीसीडेंट बेस्ड स्ट्रेटजीज, यानी कि बिहेवियर के होने से पहले पहले कुछ करना है, अगर नहीं कर सके
तो बिहेवियर होने के बाद आपने उसके रीजन को रोकना है, किस वजह से, जिस वजह से वो रो रहा है वहां तक बच्चे को पहुंचने नहीं दे, दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। सो अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ जाएं तो उसमें आप, ये आपके सामने टेक्निकल डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो पहले रीइंफोर्समेंट मिल रही थी अब आपने उसको रोक दिया, इस वजह से बिहेवियर जो है वो रिड्यूस हो गया, प्रॉब्लम बिहेवियर की स्पेशली बात हो, ठीक है। सो नो रीइंफोर्समेंट, बिहेवियर डिक्रीज। इसी तरह से टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन की बात हो जाती है। एस्केप एक्सटिंक्शन, आप बच्चे को जो है वो एस्केप ना करने दें। फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को कोई चीज करने को दी, कोई होमवर्क करने को दिया और बच्चा जो है वो उठा के फेंक देता है, कॉपीज फेंक देता है, पेपर फाड़ देता है, व्हाटएवर स्क्रिबल कर देता है, आप वो एस्केप बच्चे को नहीं करने दें, आप रिप्रेजेंट करें बार बार टास्क को, दैट वुड बी नोन एज एस्केप एक्सटिंक्शन। फिर सॉरी ये दोबारा से लिखा हुआ है, इसके बाद आ जाता है अटेंशन मेंटेन्ड बिहेवियर्स। अगर मैं इसको एस्केप की जगह पे चेंज करूं, अटेंशन मेंटेन्ड बिहेवियर्स, बच्चा आपकी अटेंशन देने के लिए कुछ कर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप फोन पे बात कर रही हैं, बातें कर रही हैं, लंबी बात हो गई है, अब बच्चा जो है वो बोर हो रहा है बैठा हुआ, वो आपको तंग करना शुरू कर दे, आपके हाथ पकड़ के खींचना शुरू कर दे, दुपट्टा पकड़ के खींचना शुरू कर दे, चीखें मारना शुरू कर दे, तो वो बेसिकली आपकी अटेंशन लेने के लिए उस टाइम पे बिहेवियर कर रहा होता है। फिर इसके बाद आ जाता है डिमांड मेंटेन बिहेवियर्स। डिमांड मेंटेन बिहेवियर ये कि फॉर एग्जांपल उसको कोई चीज चाहिए, अब वो सीधे तरीके से आपसे पूछ नहीं रहा बल्कि छीन रहा है, झपट रहा है, या पहुंचने की कोशिश कर रहा है, या तोड़ फोड़ करके किसी तरह से वो चीज लेने की कोशिश कर रहा है, तो दैट वुड बी उसकी डिमांड है, उसका तरीका है आपसे वो चीज लेने का। एंड देन द लास्ट थिंग इज सेंसरी एक्सटिंक्शन। सो ऑटोमेटिक बिहेवियर सारे के सारे कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सेल्फ स्टिमुलेटरी होते हैं, हमारे अपनी जो सेंसरी नीड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं बैठी हुई अभी टांग हिला रही हूँ, दैट इज माय सेंसरी नीड, ठीक है। तो उसकी कोई और बाहर से कोई एक्सटर्नल कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको रीइंफोर्समेंट, आप अपने आप को प्रोवाइड कर, ठीक है। जिस तरह से नेल बाइटिंग हो गई, रॉकिंग हो गई, स्टिमिंग हो गई, वो वोकल स्टीरियोटाइपी हो गई, इसके अंदर बहुत सारे इस टाइप के बिहेवियर्स आ जाते हैं जो कि बच्चा खुद अपने आप को रीइंफोर्स कर रहा है। तो इन सारी चीजों को एक्सटिंक्शन पे लगाना, आप इस सेंसरी बिहेवियर को कैसे एक्सटिंक्शन पे लगाएंगे, आप उसको वो बिहेवियर करने से रोकेंगे। डिमांड मेंटेन बिहेवियर को सबको भी बेसिकली जो जिस चीज को वो लेना चाह रहा है, रीइंफोर्समेंट तक वो पहुंचना चाह रहा है, वहां पे आपने उसको रोक दिया, तो दैट विल बी नोन एज एक्सटिंक्शन। बट इसके साथ एथिकल कंसर्न्स बहुत हो जाते हैं, यानी कि ये नहीं कि आपने एक्सटिंक्शन कर दी तो बस सारे मसले हल हो गए। एथिकल कंसर्न सबसे पहला जहन में रखने के लिए वो ये कि बच्चे को जब आप किसी चीज से रीजन को रोकते हैं तो वो शुरू में ट्राई ज्यादा करेगा वो चीज लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन बर्स्ट। तो पेरेंट्स अक्सर परेशान हो जाते हैं कि यार हमें थेरेपिस्ट ने तो बोला था कि आप ये चीज रोक दें तो बच्चे का बिहेवियर डाउन हो जाएगा, लेकिन वो डाउन होने के बजाय इनिशियली और एग्रेसिव हो जाता है बच्चा, और ज्यादा बिहेवियर शो करता है। तो फिर क्या होता है, पेरेंट्स घबरा के वहां पे गिव अप कर देते हैं कि नहीं 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 ये थेरेपी ठीक नहीं है, और फिर उसको वो चीज दे देते हैं और एक्सटिंक्शन आपकी टोटली फेल हो जाती है। बच्चा नेक्स्ट टाइम लर्न ये कर लेता है कि मैं और ज्यादा ये बिहेवियर करूं तो मम्मा मेरी बात मान ही लेंगे, आप उसको गलत और एग्रेसिव बिहेवियर्स टीच कर देते हैं। इसीलिए एक्सटिंक्शन के बहुत सारे एथिकल कंसर्न्स हैं, आप कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर स्टार्ट कर दे, फिर आप क्या करेंगे, आप फंस जाएंगे, आपको रोकना ही पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है ना। सो ये भी बहुत आपका टेक्निकल इशू है, आप अकेले नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीजें एथिकल कंसर्न्स माइंड में रखते हुए एक्सटिंक्शन की तरफ जाना होता है। और इससे भी बेटर इसका सोल्यूशन जो है वो क्या होता है, टीच रिप्लेसमेंट बिहेवियर। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ऑल बिहेवियर इज कम्युनिकेशन। जब बच्चा कोई आपसे लड़ाई वड़ाई कर रहा है ना, एग्रेशन शो कर रहा है, या वोकल स्टीरियोटाइपी शो कर रहा है, या आपसे छीना झपटी कर रहा है, दोज ऑल बिहेवियर्स आर बेसिकली हिज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो आपको कुछ कम्युनिकेट कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है, ठीक है। सो ये हम हैं, हम उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम आगे से उसको थप्पड़ लगा देते हैं और परेशान हो जाते हैं और गलत तरीके से रीइंफोर्स कर देते हैं, व्हाटएवर। सो सबसे पहला इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप बच्चे को सही चीज टीच करें। बेसिकली सारे के सारे प्रॉब्लम बिहेवियर्स उनकी 99% वजह ये होती है कि बच्चे को पता नहीं होता कि व्हाट एम आई सपोज टू डू। बच्चे को आपने ये नहीं सिखाया कि करना क्या है इसकी जगह पे,
अगर आपने चीखना नहीं है तो करना क्या, आपने प्रॉपरली बोलना है। अगर आपने छीनना नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने टैप करना है शोल्डर। अगर आपने वो चीज उठानी खुद से नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने पॉइंट करना है टुवर्ड्स दैट। तो हम क्या करते हैं, हम बजाय टीच करने के हम बच्चे को रोके जा रहे हैं, रोके जा रहे हैं, पनिश किए जा रहे हैं। अगर बच्चा अटेंशन के लिए फॉर एग्जाम्पल आपकी रो रहा है, तो आप ये तो नहीं करेंगे ना उसे थप्पड़ मार देंगे, डांट देंगे, लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको अटेंशन देंगे। सो यहाँ पे एक्सटिंक्शन फेल हो जाती है। आप हर जगह पे एक्सटिंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हैं कि आप डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट करें। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट से भी आपका काम हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर बिहेवियर बच्चे ने शो किया, आप उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करें, बहुत ज्यादा रीइंफोर्स करें, ठीक है। और जहां पे उसने प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर शो किया, आप उसको कम कम रीइंफोर्स करें, लाइक थोड़ा थोड़ा। नो दिस वी कैन अटेंशन, फॉर एग्जाम्पल अटेंशन के लिए कर रहा है तो कम अटेंशन उस टाइम पे दें, लेकिन ज्यादा अटेंशन आप बेटर बिहेवियर, गुड बिहेवियर पे दें। अगर बच्चा एस्केप करना चाह रहा है तो आप उसको एस्केप करने दें। आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ब्रेक लेना सिखाएं, कैन आई हैव अ ब्रेक, और ब्रेक कार्ड यूज करना सिखाएं, और वट एवर, एंड देन यू कैन गो टेक अ ब्रेक, ठीक है। एक्सटिंक्शन हर जगह यूज नहीं करें, आप प्रॉपर बिहेवियर सिखाने के ऊपर फोकस करें, तो बहुत 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 बेटर है बनिस्बत इसके कि आप बहुत सारी चीजें उसकी एथिकल कंसर्न जो है वो यानी कि बच्चे को आपने कुछ सिखाया नहीं, कुछ किया नहीं, दैट इज एथिकली टोटली रॉन्ग, कि आप बस बंद किए जा रहे हैं बच्चे को और इंस्टेड कुछ और सिखा नहीं रहे, ठीक है। सो ये पॉइंट आप जहन में रखिएगा। एंड देन कम्स this punishment, which is the third principle of behavior. ABA discourages use of punishment. सबसे पहली बात ये, punishment is very 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 misused thing, ठीक है। किस तरह से मिसयूज्ड होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा मेरी अटेंशन के लिए कुछ कर रहा है, ठीक है, और मैं उसको थप्पड़ लगा दूं, बच्चा चुप होके बैठ, अब क्या होगा, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊं कि हाँ ठीक है, ये काम तो करता है, ये स्ट्रेटजी तो करती है, मैं इसको थप्पड़ लगाऊं तो ये तो चुप होके बैठ जाता है, नेक्स्ट टाइम क्या करूंगी, मैं दोबारा से वही काम करूंगी। तो जो पनिशमेंट मैं बच्चे को दे रही हूँ वो खुद मेरे लिए रीइंफोर्समेंट बन जाती है। तो नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा से पनिशमेंट दूंगी, मुझे आदत पड़ जाती है पनिशमेंट देने। So never go towards punishment at all. This is what I would like to emphasize. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पनिशमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, नेचुरली पनिशमेंट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी जलते हुए चूल्हे को हाथ लगा लेती हूँ, गलती से टच कर लेती हूँ, जानबूझ के नहीं, गलती से, ठीक है, तो मुझे क्या होता है, मुझे दर्द का एहसास होता है। नेक्स्ट टाइम मैं वो बिहेवियर रिपीट नहीं करूंगी, मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगी, मैंने लर्न कर लिया कि मुझे ये दर्द होता है, मुझे इसको नहीं टच करना। तो ये क्या हुआ, मुझे पनिशमेंट मिल गई। अब इसके बाद मैंने लर्न कर लिया कि मुझे ये काम नहीं करना, ठीक है। तो पनिशमेंट हैज अ सर्वाइवल वैल्यू इन योर लाइफ। आप इस तरह से सर्वाइव करना अपने एनवायरनमेंट में सीखते हैं, लेकिन जब आप किसी को पनिशमेंट देने की तरफ जाएं तो बहुत 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 एथिकल कंसर्न्स आ जाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप सारे के सारे दूसरे मेथड्स एग्जॉस्ट कर लेते हैं, आपने रीइंफोर्समेंट ट्राई कर ली, आपने एंटीसीडेंट बेस्ड स्ट्रेटजीज ट्राई कर ली, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। फर्स्ट पॉइंट ये, तब कहीं जाके आप पनिशमेंट की तरफ जाएंगे। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि पनिशमेंट देने से पहले आपको एथिकल कंसर्न, आपको एसेंट, आपको कंसेंट पेरेंट का ये लेना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन सारों में से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि बिहेवियर इस तरह का हो जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए या वेल बीइंग के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। रिमेंबर दैट, यानी कि सिर्फ वो बिहेवियर्स जो कि सेल्फ इंजुरियस बिहेवियर्स हैं, जिससे बच्चे को चोट लगने का खतरा है या किसी खुदा ना खास्ता किसी और को चोट लगने का खतरा है, तो फिर हेल्थ और वेल बीइंग के लिए बच्चे की अगर वो बहुत जरूरी हो गया है, यानी कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब कहीं जाके आप कंसिडर करते हैं पनिशमेंट की तरफ आते हैं, वरना अदरवाइज नो, नेवर नेवर गो टुवर्ड्स इट। और इवन पनिशमेंट भी अगर आप देंगे तो साथ में उसको रिप्लेसमेंट बिहेवियर सिखाना बहुत जरूरी है, सिखाते रहना। फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइप पनिशमेंट की ऐसी होती है, जैसे एक टाइप है ओवर करेक्शन। ओवर करेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम बच्चे को, अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने चीजें बिखेरी हैं, तो हम बच्चे को कहेंगे कि इसको और ज्यादा ठीक करके रखो, यानी कि ना सिर्फ ये कि शेल्फ के ऊपर वापस रखो, बल्कि सफाई भी करो, सब कुछ करो। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट।
तो इसमें क्या है कि बच्चा लर्न भी कर रहा है कि मुझे चीजें ठीक करके कैसे रखनी है, और इसके बाद फिर वो सोचेगा कि यार इतना ज्यादा काम करना पड़ता है तो छोड़ो, मैं ये काम गलत काम ना ही करूं। तो उन केसेस में सिर्फ पनिशमेंट जो है, जो कि बहुत ही डेंजरस बिहेवियर है, उस टाइप की चीज पे आप जाते हैं, वरना अदरवाइज नेवर गो टुवर्ड्स इट। ऑलवेज ऑप्ट फॉर एंटीसीडेंट बेस्ड इंटरवेंशन सबसे पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। देन कम्स एक्सटिंक्शन। आप रीजन को निकाल दें, बिहेवियर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑलवेज गो फॉर those things. And thank you so much for joining in today. यहाँ तक हमारी presentation का end हो गया है, और I hope that we have cleared some of the issues, and let's take your questions. अगर आप लोगों के कोई questions वगैरह हैं तो हम लोग अभी मौजूद हैं, we can take them. अच्छा आलिया, कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो मैं आपको बताना शुरू करती हूँ, यू कैन आंसर अकॉर्डिंगली। एक क्वेश्चन आया है, हाउ टू रिड्यूस ऑटोमेटिक बिहेवियर या सेंसरी बिहेवियर, जो स्टिमिंग बिहेवियर। जी, आप लोगों में से कोई पैनलिस्ट में से जवाब देना चाहेगा? और अदरवाइज आई शुड मूव फॉरवर्ड। आपने ये अभी कवर किया है पॉइंट, लेकिन मैं चाहती हूँ दोबारा आप एम्फसाइज करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। देखिए, सबसे पहले सेंसरी बिहेवियर की बात ये कि अगर वो कुछ कर नहीं रहा ना, बच्चे की डेवलपमेंट में कुछ नहीं कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, तो जस्ट लीव इट अलोन। सबसे पहली बात ये। यस, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूं कर रही हूँ, ठीक है, ये इस तरह का बेजरर सा बिहेवियर है, या मैं ऐसे कर रही हूँ, ये मैं करती ही हूँ। मैं बहुत सारे सेंसरी बिहेवियर्स अपने भी नोटिस कर रही होती हूँ, और आप लोगों ने भी कभी किया होगा लाइफ में कि हम कर ही रहे होते हैं और हमारे लिए वो नॉर्मल है, लेकिन जब ऑटिस्टिक बच्चा करे तो हम कहते हैं यार ये क्या कर रहा है, इसको तो ऐसे बिल्कुल बहुत ज्यादा हम ओवर करके जो है ना बच्चे को कहते हैं कि बस बिठा दें और वो इंसान का बच्चा और कोई रोबोट वगैरह बन के बैठ जाए। एग्जैक्टली मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि इंसान के बच्चे हम भी नहीं थे जब हम छोटे थे। तो आप व्हाई डू यू वांट टू ओवर डिसिप्लिन योर चाइल्ड? वो बच्चा ऑटिस्टिक बाद में है, वो बच्चा पहले है। तो हम लोग कभी कभी इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना कि उसको बच्चा होने का मार्जिन भी नहीं देते हैं। तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई डील विद माय म्यूट या नॉन वर्बल चाइल्ड? अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ तक रुकी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि पेरेंट्स इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं हुए होंगे। सो मैं यहाँ से आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाह रही थी कि अगर सेंसरी बिहेवियर इस तरह के हैं जो कि सेल्फ इंजूरियस टाइप के हैं, जो कि बच्चे की प्रोग्रेस को बहुत ज्यादा हिंडर कर रहे हैं, वो जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा ड्यू टू वोकल स्टीरियोटाइपी है ये, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप इसका अल्टरनेटिव दें। यहाँ पे भी आप ये चीज अप्लाई करें। तो सेंसरी इनपुट मुझे कहाँ पे अलाउ है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल आप इसका एक वर्क टाइम बना लीजिए। वर्क टाइम है ये मेरा, इस टाइम पे मुझे ये इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी है सेंसरी, मुझे काम करना है, मुझे कंसंट्रेट करना है, मुझे बात करनी है, ठीक है? और व्हेन आई एम अलोन देन आई एम अलाउड टू डू। तो इस तरह से आप सेंसरी इनपुट का भी एक वे आउट रखेंगे ना, तो बच्चा बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइपर एक्टिव रिलेटेड है एक क्वेश्चन कि हाउ कैन आई रिड्यूस वर्बल स्टिमिंग इन माय चाइल्ड? वर्बल स्टिमिंग हो रही है। एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल हाइपर एक्टिव बिहेवियर है या वर्बल स्टिमिंग है, तो आप क्या करेंगे, आप बच्चे को बोलना सिखाएंगे। जैसे जैसे वो बोलेगा उसकी वोकल स्टीरियोटाइपी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही कम होगी, जितना वो फंक्शनल स्पीच आएगी। और वर्बल स्टिमिंग को तो मैं कहती हूँ कि वो आप बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट सारा को ज्यादा अच्छी तरह पता होगा कि आपके मसल्स जो हैं माउथ के, वो बहुत ज्यादा उनकी मूवमेंट और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है इस बिहेवियर से। तो उसको आप ऐसे लें, पॉजिटिव लें, उसको पॉजिटिव वे में आप सिखाएं, स्पीच सिखाएं, तो दैट इज बेटर। उसकी टंग रोलिंग, टंग मूवमेंट, माउथ जॉ मूवमेंट, सारे मसल डेवलप हो रहे हैं, ठीक है ना? तो इस चीज को आप ना लें। अच्छा आलिया, we can even try to understand the function of behavior ना, कि why is this behavior occurring? ये verbal stimming हो क्यों रही है? ऐसा क्या होता है antecedent कि ये behavior occur होता है? मैं पेरेंट्स से यही कहती हूँ, अगर आपको फंक्शन समझ आ जाएगा ना, तो फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि मुझे ये टैकल कैसे करना है। ठीक है,
एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट वजीहा। क्योंकि जी। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि वर्बल स्टिमिंग होने का जरूरी नहीं है कि सेंसरी बिहेवियर हो सकता है कि अटेंशन के लिए बच्चा कर रहा है, हो सकता है किसी और रीजन से कर रहा है, तो उसके हिसाब से फिर आपकी इंटरवेंशन डेवलप। एग्जैक्टली। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कंट्रोल हिटिंग एंड स्पिटिंग बिहेवियर। अब ये दो अलग अलग बिहेवियर्स हैं, हिटिंग अलग है, स्पिटिंग अलग है। कोई और इसमें इनपुट देना चाहें तो वही बात आ गई कि हमें रीजन नहीं पता। पैनलिस्ट प्लीज। वही बात, द थिंग इज दैट वी शुड नो द रीजन ना। वही बात जो हमने की कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बिहेवियर, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट फर्स्ट। क्यूएबीएफ जो हम जैसे करते हैं, सो इफ एक बिहेवियर आ रहा है, फॉर एग्जांपल हिटिंग आ रहा है, तो लाइक वी आर गोइंग टू अप्लाई क्यूएबीएफ। उससे हमें पता चल जाएगा कि वो बिहेवियर अटेंशन की वजह से आ रहा है, either it's because of escape, either it's because of child is having sensory problem, so we are going to identify that। तो हम जब रीजन आइडेंटिफाई करते हैं तो हमने वही बात की कि या हम इंसिडेंट इंटरवेंशन करेंगे या हम जो है तो कॉन्सिक्वेंस बेस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज वी हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ बिहेवियर। So when we know the behavior function, तो easily we can work on that, because हर चीज का जो है जब आपको कॉज पता होता है तभी आप उसके ट्रीटमेंट पे बेटर काम कर पाते हैं। अच्छा सारा, आप क्योंकि स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट भी हैं, तो स्पिटिंग स्पिटिंग बिहेवियर ज्यादातर क्यों आ रहा होता है बच्चों में? स्पिटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पिटिंग बिहेवियर जिन क्लाइंट्स में मैंने देखा है तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स की, लाइक इट्स नॉट लिंक विद द स्पीच थेरेपी, यू नो, लाइक इट्स नॉट दे आर हैविंग द स्पीच प्रॉब्लम, बिकॉज स्पीच प्रॉब्लम अगर होती भी है तो बच्चे का ड्रूलिंग आ रहा होता है या उसके ओरल मोटर इश्यूज होते हैं। स्पिटिंग इज द थिंग विच द चाइल्ड लर्नड, वो लर्न करता है। लाइक आजकल तो मैं खुद जब बैठ के किसी बच्चे के साथ आप कार्टून देखने बैठे तो उसमें ज्यादातर जो है तो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं, कोई पॉजिटिव बिहेवियर है ही नहीं, तो बच्चा वो चीज लर्न कर रहा है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक होते हैं, सेंसरी इश्यूज होते हैं, तो फॉर दैट वी रिकमेंड द चाइल्ड यू नो टू द occupational therapist, so they are having specific techniques for that, they put something in their mouth, उनका कोई टीथर वगैरह होता है and something like that, तो यस वो यू आर किया राइट। जाता पता है। है, आपने सही चीज पॉइंट आउट किया कि अगर स्पिटिंग बिहेवियर इज रिलेटेड टू ओटी तो फिर ड्रूलिंग भी अकर हो रही होती है, वो यानी कि इनवॉलेंटरी होता है ना, बच्चा जानबूझ के नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो फॉर दैट स्पीच थेरेपिस्ट तो ओरल मोटर एक्सरसाइजेस करवा देता है, और अगर बिहेवियर रीजन से है तो ऑब्वियसली हम बिहेवियर आइडेंटिफाई करेंगे, मैम की बात की, हम कोई रिप्लेसमेंट बिहेवियर देंगे बच्चे को, तभी जो है स्पिटिंग बंद होगी। एक और ठीक मैं है जी। बताती हूँ स्पिटिंग बिहेवियर का। एक एग्जांपल है, एक क्लाइंट था कि उसने अचानक से स्पिटिंग बिहेवियर स्टार्ट कर दिया, और पता चला कि उसका न्यूबॉर्न बेबी आया था और उसका सिबलिंग आया था, तो उस वजह से वो अपनी मदर की अटेंशन के लिए वो स्पिटिंग शुरू करता था। जब वो स्पिटिंग करता था तो मदर उसको ले लेती थी, प्यार करती थी या जो भी करती थी, तो उसको ये अटेंशन मिल रही थी, तो उसने ये बिहेवियर उसका ये था कि उसको अटेंशन चाहिए थी उसकी मदर से, तो इसलिए वो स्पिटिंग करता था। और जब हमने उसको ऑब्जर्व किया बहुत सारी चीज़ों में, बहुत 1-1.5 घंटे तक उसका कोई ऐसा बिहेवियर नहीं आया, लेकिन जहाँ वो घर गया उनकी मदर ने सेम वही कंप्लेन की कि वो, फिर पता चला कि वो अपनी मतलब बेबी की वजह से डिस्टर्ब हुआ है बच्चा। राइट राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है कि 8 साल का फुली वर्बल बच्चा है, हाईली फंक्शनिंग है, उसका टॉकिंग बैक का बिहेवियर है, उसकी बात ना मानी जाए तो एग्रेसिव हो जाता है, मिसबिहेव करता है, तो ये बिहेवियर कैसे टैकल किया जाए? अस्मा आप बताएंगी? टॉकिंग बैक का तो इस तरीके से भी किया जा सकता है कि आप उससे कुछ बोले नहीं, मतलब उसको आप प्रॉम्प्ट के थ्रू बताएं। जैसे कि मैंने एक बच्चे को अपने ट्रेन किया था कि आई वांट बंटी, इस तरीके से, तो मैं खाली उसको सिर्फ फिंगर्स दिखाती थी, तो आई देन वांट देन बंटी, उसके बाद खाली मैंने उनको उसको बंटी दिखाई तो ये लर्न दिस आई वांट बंटी। तो इस तरीके से भी इधर हो तो सकता है बच्चा कि आप फुली वर्बल है, यानी फंक्शनल लैंग्वेज है उसकी ना, फंक्शनल स्पीच है, एक उसके एग्रेशन बिल्ट अप हो गया है उसके टेम्परमेंट में कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं बिहेवियर शो करूंगा। ये एग्जैक्टली चीज पीछे यही हो रहा होगा कि उसकी बात मानी जा रही होगी, उसका बिहेवियर इंडोर्स किया जा रहा होगा, तभी उसने ये लर्न कर लिया कि अगर मेरी कोई बात नहीं मानी जा रही है और मैं इस तरीके से बिहेवियर दूंगा तो मुझे जो भी मैं चाह रहा हूँ मुझे मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। तो इसी वजह से वो इस तरह का बिहेवियर का मेरा तो ख्याल 4 years रीइंफोर्समेंट का जो स्केड्यूल है
रीइंफोर्समेंट का जो स्केड्यूल है वो हम रीडिजाइन करें, उसको रीइंफोर्स कम करते जाएं हम, जरूरी नहीं कि ये हर भी दफा। होता है कि हम रीइंफोर्समेंट कम कर देते हैं। अगर मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक क्वेश्चन करेंगे तो यू विल गेट 1 कुकी, तो आप यू आर हैप्पी यू आर डूइंग दिस। मगर फिर मैं आपको Right. कहूँ कि आप 3 क्वेश्चन करेंगे यू आर गेटिंग द सेम कुकी, तो वहां पे क्या होता है कि रेशियो स्ट्रेन हो जाता है और फिर बच्चा जो कहता है कि मैं 3 सवाल करके क्यों मैं 1 कुकी लूँ, जो मैं एक सवाल करके भी मुझे एक ही मिल रहा था। तो अगर तो वो हमारा बिहेवियर्स आते हैं। एग्जैक्टली Right. रीइंफोर्समेंट हमारा इक्वली होना चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए, कितना करना देना चाहिए रीइंफोर्समेंट, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट मैम हम प्रैक्टिकल फंक्शनल असेसमेंट भी कर सकते हैं टू फाइंड आउट द ट्रिगर, किस तरह से वो अग्रेसिव होता है। इट्स नॉट दैट कि वो सिर्फ फीडबैक करता है या जब उसकी बात नहीं मानी जाती, कोई प्रिसाइज ट्रिगर्स भी होंगे जिसकी वजह से वो अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। तो अगर डिटेल्ड असेसमेंट हो ना, प्रैक्टिकल फंक्शनल असेसमेंट लाइक ग्रेग हेनली यूज्ड टू डू, तो ज़्यादा इफेक्टिव हम प्लान आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली और एक जनरल सी स्ट्रेटेजी वो ये बहुत अच्छी रहती है कि आप एक दफा उसकी बात मान लें, एक दफा वो आपकी बात माने, इस तरह की डील कर लें बच्चे के साथ कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, नेक्स्ट टाइम तुमने मेरी बात माननी है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके आप बच्चे को ट्रैक पे ला सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है बड़ा वैलिड है कि स्क्रीन टाइम कैसे कम करें, क्योंकि स्क्रीन टाइम के लिए अटेंशन वाला बिहेवियर है, चीजें फेंकना तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है बच्चा। तो ये स्क्रीन टाइम कैसे रिड्यूस किया जाए, क्योंकि माँ बाप फिर नहीं नहीं इसको दे दो, ये तो चीजें तोड़ रहा है, वो वाली स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। तो ये कैसे टैकल करना चाहिए? यहाँ पे वही बात आ गई एक्सटिंक्शन वाली कि जब हमने एक्सटिंक्शन पे लगाया नहीं मैं नहीं दूंगी, अब बच्चे ने तोड़ दिया उठा के फेंक दिया तो आपने डर के दे दिया, बच्चा नया बिहेवियर सीख गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, जैसे ही बिहेवियर आए उसी वक्त आपने कंसल्टेशन लेनी है। स्क्रीन टाइम अब आ गए हैं बिहेवियर, तो अब आप ये कर सकते हैं कि बेबी स्टेप्स में, बहुत ही छोटे छोटे माइनर स्टेप्स में उसको रिड्यूस करना स्टार्ट करें। अगर 8 घंटे का है तो 8 आवर्स एंड 55 मिनट्स का कर दें। इस तरह आप बेबी स्टेप्स में करके उसका आहिस्ता आहिस्ता करके रिड्यूस करें। बच्चे के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ, उसको आपको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बार बार बोलना भी पड़ेगा, विजुअली दिखाना पड़ेगा, और चीजें, यानी कि रिप्लेसमेंट बिहेवियर भी तो हो ना, वही वाली बात कि जब और अच्छा, चीजें आती ये हैं, स्क्रीन टाइम इंटरेस्टिंग के चीजें अलावा बच्चे। आपने उसको कोई और बिहेवियर या कोई और एक्टिविटी में एंगेज Yes. करना, उस टाइम को वो कहाँ Involve यूटिलाइज करना। करेगा। फिर नीचे ये भी पूछ रही हैं कि स्क्रीन से तो बच्चे सीखते भी हैं, तो मैं स्क्रीन यूज कैसे कर सकती हूँ बच्चे को नई चीजें सिखाने के लिए? अब ये बात मुझे नहीं समझ आ रही है, मैम प्लीज आप लोग। इसके लिए जो है तो मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि जब स्क्रीन आप बंद कर देते हैं तो हमेशा स्क्रीन को रिप्लेस करें टीवी के साथ। तो टीवी में आप ये करें कि आप उसमें यूएसबी में पहले आप जो कंटेंट आप डालना चाह रहे हो आप खुद देख लें कि उसमें कोई ऐसी नेगेटिव चीज तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कल में हो गया कोई और ऐसी मॉडलिंग बिहेवियर, वो आप यूएसबी में डाल के, जैसे सबके घर में एलसीडी थे उसमें यूएसबी लगती हैं, तो वो डाल दिया करें। तो जब भी बच्चा उसको नीड होती है तो आप वही चीज जो है वो लगा दिया करें। तो उससे वो नेगेटिव भी लर्न नहीं करेगा, आप जो चाहेंगे वो लर्न करेगा और उसकी डिमांड भी पूरी हो जाएगी। बट दैट शुड बी फॉर फिक्स टाइम एंड फिक्स रेशो जब हम बात करते हैं। एग्जैक्टली ये यानी कि आपका मॉनिटर्ड स्क्रीन टाइम होना चाहिए, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि बस हमने टीवी लगा दिया है। आपने 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए लगाना है, दैट्स इट, उसके बाद टाइम आउट हो जाना चाहिए लाजमी। ओके, तो मेरे ख्याल में हमने ज्यादातर तो कवर कर ही लिए हैं। अच्छा, एक मदर कह रही है कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट द स्पीच ऑफ आवर चाइल्ड, तो मेरे ख्याल में ये नॉन वर्बल बच्चा है और ये ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के बारे में पूछना चाह रही हैं। तो सारा आप बताना चाहेंगी? बच्चे के हवाले से उन्होंने कुछ कहा है मैम? जैसे ये अगर बच्चा म्यूट है, नॉन वर्बल है, तो उसको ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन का कौन सा मोड हम यूज कर सकते हैं? कुछ पेरेंट्स की थोड़ी सी नॉलेज के लिए, जैसे साइन लैंग्वेज वगैरह के बारे में अगर आप बताएं। साइन लैंग्वेज है, एसीसी है, इसके अलावा डिफरेंट आजकल जो है तो पैक सिस्टम हम कहते हैं कि वो काफी इफेक्टिव होता है। और एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, एग्जैक्टली ठीक है। वो यूज कर सकते हैं, हम एसीसी यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव एकोमोडेटेड कम्युनिकेशन जो है वो हम यूज कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट कि अगर बच्चा नॉन वर्बल भी है
तो वही बात के हमने लाइक हम वर्बल बिहेवियर की बात करते हैं कि लाइक वी हैव टू मेक द चाइल्ड कि वो प्रॉपर मेंट करे, ही शुड रिक्वेस्ट फॉर द थिंग्स हिज नीड्स कि कैसे करने हैं। इफ अगर वो वर्बल नहीं कर पा रहा है तो उसको नॉन वर्बल सिखाना है, डिफरेंट कार्ड्स के थ्रू आप उसे करवा सकते हैं। लाइक यू हैव टू मेक द एसोसिएशन बिटवीन द कार्ड्स एंड यू नो द वांट्स व्हाट ही वांट्स। तो उससे जो है ऑटोमेटिकली उसकी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाएगी। और मोस्ट केसेस में हमारे पास जब बच्चे आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ, उनके प्री लिंग्विस्टिक्स इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, वही उनके जो है तो रिजॉल्व नहीं हुए होते। तो जब तक प्री लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुए होते हैं तो बच्चा जो है आपको प्रॉपर अटेंशन भी नहीं देता है, उसका सिटिंग स्टैंड भी पुअर होता है, वो अपने नेम पे रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो हाइपर एक्टिव एडीएचडी के बच्चों में, ऑटिज्म के बच्चों में, स्क्रीन टाइम के बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। तो हमेशा पेरेंट्स को मैं ये कहती हूँ कि जब आप स्क्रीन टाइम बंद करवाते हैं तो बच्चे का सिटिंग बिहेवियर जो है वो डेवलप करवाएं। तो जब वो बैठेगा तभी वो आपको इजीली जो है वो अटेंशन दे पाएगा जो आप उसे बता रहे हो, सिखा रहे हो। तो अगर वो कितने भी टाइम, अगर वो, आई हैव अ क्लाइंट जो हमारे पास 5 ईयर्स से आ रहा था, वो नॉन नॉन वर्बल था, स्क्रीन टाइम उसका सब कुछ बंद हो गया। आफ्टर 1 ईयर वो जो है तो ही स्टार्ट टॉकिंग और 1 वर्ड पे वो आ गया। Amazing, तो amazing. ऐसा नहीं है, जब आप करते हो तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है। तो कुछ दिनों पहले मेरी जो आईबीए के स्टूडेंट है वो जिया, उनसे बात हो रही थी स्पीच के हवाले से। तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी, बच्चा 1 साल से थेरेपी ले रहा था। तो मैंने उन्हें कहा कि आप स्पीच थेरेपिस्ट के साथ बैठे डिस्कस करें कि क्या इशू है। तो वही बात है कि सारा प्रॉब्लम स्पीच थेरेपिस्ट की तरफ से ही आ रहा था। और क्योंकि मैं यही बता रही थी कि दे आर नॉट यूजिंग द रीइंफोर्समेंट, मोस्टली वो रीइंफोर्समेंट को इतना नहीं इनकरेज करते हैं। व्हेन आई जब मैंने आरबीटी की ट्रेनिंग ली, आईबीटी की थी, फिर आईबीए की, तो आई केम टू नो कि रीइंफोर्समेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जो आपको बच्चे को देना होता है। जब आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट नहीं दे रहे होते, बच्चा आपके पास कैसे आएगा? क्योंकि वो तो आप रफ एंड टफ वैसे ही बच्चे को कुछ सिखा रहे होते हो। तो रीइंफोर्समेंट आपको देनी है, बच्चे के साथ बॉन्ड बनाना है। जब बॉन्ड बन जाता है आपके साथ तो ऑटोमेटिकली वो आपको फिर कॉपी करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सारा, दैट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है कि स्पीच थेरेपिस्ट है, पूछ रही हैं कि बच्चे को हमने उसकी स्पीच पे वर्क करके इतना तो इम्प्रूव कर दिया कि स्कूल जा रहा है, लेकिन पेरेंट्स एम्फोसाइज करते हैं कि हमारे बच्चे को और बच्चों के साथ क्यों नहीं बिठाया जा रहा। तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ, ये सिर्फ पेरेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल ही इस तरह से, यानी कि क्या बोलेंगे, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं स्पेशल बच्चे में और यू नो आपके न्यूरोटिपिकल बच्चे में। तो फिर ये तो देखें स्कूल के पार्ट पे मिस्टेक है ना, इसके बारे में स्पीच थेरेपिस्ट या बिहेवियर थेरेपिस्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं, हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं ताकि इन बच्चों को एक्सेप्टेंस मिले हमारी सोसाइटी में। सो दैट्स अबाउट इट। मैंने खुद इसमें ऐसे जी जी मैम। एक चीज और, सॉरी, मैं ऐड करना चाहूंगी कि पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि वो उठा के बच्चे को बस स्कूल भेजना चाहते हैं और उसकी बस स्कूल थेरेपीज पे भेजना, बिल्कुल भी बिल्कुल। कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं होती है और कहते हैं बस स्कूल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, सबके साथ उठेगा बैठेगा। ऐसा नहीं है। 1-on-1 ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। 1-on-1 हो गई और उसके बाद फिर आप शेडो टीचर रखें, उसके साथ बच्चे को भेजें, वो शेडो टीचर देखे जाके उसको इंक्लूड करे। दैट इज प्रॉपर इंक्लूजन। ये नहीं कि आपने बस बच्चे को डाल दिया और फिर स्कूल की सारी जिम्मेदारी है, तो दैट इज अ मिस्टेक आई थिंक। अच्छा, एक बात और है आलिया, क्योंकि हम ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो मैंने कहा मैं हाईलाइट करूं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं ऑटिज्म का डायग्नोसिस लेके, और जब हम उनके साथ वर्क करते हैं तो हमें ये अंदाजा होता है कि ऑटिज्म नहीं है, ऑटिज्म के कुछ ट्रेट्स हैं, और पेरेंट्स ने उठा के इंटेंसिव थेरेपी में डाल दिया, पेरेंट्स को खुद नहीं पता है। तो ये चीज मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपका बच्चा वाकई स्पेशल नीड्स का है एंड ही हैज बिन इन इंटेंसिव थेरेपी, उसके बाद आप उसको स्कूल में डाल रहे हैं, तो यू हैव टू प्रोवाइड अ रिसोर्स जो कि बच्चे के साथ वर्क कर सके। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके बच्चे की नीड क्या है। जी माशाल्लाह। और आई थिंक यहाँ पे हमारे पास स्पेशल एजुकेटर भी हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मैं उनका भी इस पे इनपुट लेना चाहूंगी बिकॉज वाकई स्कूलिंग का एक थोड़ा इशू आ रहा है पेरेंट्स को। इफ यू गाइस वांट टू कमेंट। आप प्लीज रिपीट करेंगे। स्पेशल एजुकेशन में तो ऐसा है कि जब इंक्लूजन जो प्रॉपर होता है वहाँ पर यही होता है कि अगर आपका बच्चा डायग्नोज है तो उसके साथ एक शेडो टीचर या कोई आरबीटी साथ होती है।
वो साथ रहती है उसकी सारी एक्टिविटीज में, इसी तरीके से वो मॉनिटर होता है। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ थोड़ा सा इशू है, मोस्टली जब बच्चे आते हैं तो वो फिर स्कूल इनको लेते नहीं है, वो कहते हैं कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है तो हम नहीं इसको ले रहे, या फिर ये कि वो आप रिसोर्स टीचर प्रोवाइड करते हैं साथ में, तो फिर ये होता है कि आप स्कूल को भी पे कर रहे हैं, आप रिसोर्स टीचर को भी पे कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को बर्डन होता है, तो वो और चाहते हैं फिर कि ऐसा वे हम इसमें मैं बनाएं फिर थोड़ा भी सा ये ऐड कवर करना चाहूँगा, इसमें मैं ऐड जी थोड़ा सा अब्दुल्ला करना चाहूँगा। मैं जी जो पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमें बच्चे को स्कूल में कराना है, जिस तरह मैम आलिया ने कहा कि पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि किसी तरह बस स्कूल चला जाए, स्कूल जाएगा तो एक सोसाइटी का प्रेशर भी होता है कि नहीं हमारा अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो ही इज़ लैकिंग। तो मैं पेरेंट्स से हमेशा कहता हूँ कि बच्चे की फंक्शनल कम्युनिकेशन पे पहले काम करें। प्री रिक्विजिट स्किल्स अगर उसके डेवलप हो गए तो आप बच्चे को कंसिडर कर सकते हैं स्कूल के लिए, बिकॉज देन यू विल बी श्योर कि आपका बच्चा जब घर आता है तो वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है कि किसी ने उसको बुली तो नहीं किया। बिकॉज दिस इज़ समथिंग कि मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ इस तरह हो चुका है कि दे डू नॉट, मतलब पहले उनकी फंक्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स उनके डेवलप नहीं थे, सेटिंग ये सारी चीज़ें थी, और वो मेन स्ट्रीम स्कूल जाते थे। आई वोंट टेक द नेम, बहुत बड़ा मेन स्ट्रीम स्कूल है। एंड क्लास टीचर जो थी वो जब क्लास में जिस तरह वो बाकी बच्चे उसको बुली करते बिकॉज ही कुड नॉट टॉक, बाकी बच्चों के लिए तो क्यूरोसिटी है ना कि उसके एज फैलो और एक बच्चा बात नहीं कर रहा तो वो उनको ईजी टारगेट लगता है। तो ही यूज टू सिट आउटसाइड द क्लास, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते ही स्टार्टेड सिटिंग नियर द क्या कहते हैं मेन गेट। तो फिर जो गेट कीपर है उन्होंने बताया कि इस तरह आप मंथली पे कर रही हैं और आपका बच्चा तो क्लास में अच्छा जाता है। पेरेंट्स डोंट नो, आप देखें यस, कितनी बड़ी जाती है। देखें टीचर्स ने नहीं बताया, स्कूल वालों ने ही नहीं बताया, बच्चा तो बता ही नहीं सकता, पेरेंट्स उससे क्या पूछेंगे, वो क्या बताएगा कि मैं तो बुली होता हूँ उसकी वजह से मैं बाहर और बस बैठता हूँ। और टीचर की भी जो क्लास डिस्टर्ब होती होगी तो टीचर ने भी बॉदर नहीं किया होगा या जो भी रीज़न होगी। वैसे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे टीचर्स को भी अवेयरनेस नहीं है ऑटिज्म। अवेयरनेस नहीं है, हाँ, एग्जैक्टली। इवन अर्ली मैं ईयर्स में हमेशा उनको टीचर्स कहता को हूँ, नहीं मालूम कि ऑटिज्म होता है क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं पता। और इंक्लूजन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, जो बच्चे ऑटिज्म या ADHD के साथ होते हैं अगर वो इंक्लूजन में पढ़ रहे होते हैं तो वो बहुत जल्दी लर्न करते हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा आई जल्दी। आई एम सॉरी टू से, मगर पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिशन कराने से पहले लाजमी जाके चेक करें कि बाकी वो इंक्लूसिव स्कूल है या नहीं है। बिकॉज देयर पेरेंट्स आर दूसरे लॉट्स पेरेंट्स से ऑफ डिस्कस स्कूल, करें, पता करें, रिव्यूज लॉट्स ऑफ लें। स्कूल्स जो कि कहते हैं कि इंक्लूसिव हैं, दे आर नॉट इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि उसके अंदर न्यूरोटिपिकल भी होंगे, न्यूरो डाइवर्स बच्चे भी होंगे, और जो उनका जो स्टाफ होगा दे विल बी ट्रेंड इन ABA, स्पेशल एड के टीचर्स होंगी, और ये सारे होंगे, ठीक है। वहाँ पर शेडो टीचर्स भी होंगे या वो आपको अलाउ करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स आर नॉट इंक्लूसिव, वो सारे के सारे ही न्यूरो डाइवर्स बच्चे होते हैं। तो आप इंक्लूसिव कह के उनको पेरेंट्स को कैश नहीं करना चाहिए। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के पहले आप खुद, आप जिस तरह कह रही हैं कि दूसरे पेरेंट्स से कंसल्ट करें, रिव्यूज़ लें, सोशल मीडिया पे रिव्यूज़ लें, अपने थेरेपिस्ट से पूछें, और फिर आप अपने बच्चे को इनरोल करवाएं। वरना आपका बच्चा थेरेपी से भी वो हर चीज़ सीख सकता है जो उसने क्लासरूम में सीखनी है। Definitely, definitely. Thank you so much for a detailed answer, Abdullah. Acha ji, thank you so much for your participation. We had a wonderful interactive session. Thank you so much, panelists. आपने इतनी अच्छी presentation दी. Thank you so much, Alia. आपने फिर एक broad overview दिया. And thank you for to our participants कि आप लोगों ने इतने interesting questions भेजे हमें. Alia, आप closing remarks देंगी? जी बस चैट में एक क्वेश्चन है, आप मिस वजिया काइंडली वो रीड कर लें। अच्छा जी, पेरेंट आपको कह रहे नहीं हैं लग रहा क्लोज नहीं रखना है? वो कह रहे बात हैं, हो रही है पेरेंट्स कह रही हैं कि बच्चे से बोलो ना खामोश होने को तो और ज्यादा बात करता है। तो वही वाली बात ये मैं आंसर कर देती हूँ ब्रीफली कि आप फंक्शन ऑफ बिहेवियर समझे ना, वो अटेंशन के लिए कर रहा है, वो और बात तीनों बच्चे कर कर रहा रहे हैं। है, वो कह रहे हैं, आप उससे कहते हैं चुप हो जाओ, वो यही चीज आपसे सुनना चाह रहा है, वो And you're चुप telling होने it को again. और बोले जा रहे हैं। तो जस्ट फॉर वंस ट्राई टू अवॉइड, ना रिस्पॉन्ड करें, फिर देखें कि आया बच्चा वैसे ही बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा करके देखें। और नहीं अगर हो तो फिर आप मुझे मैसेज कर लें।
अच्छा, कामरान शेख ने भी रेज हैंड किया हुआ है. लेट्स टेक हिज क्वेश्चन एंड देन वी वाइंड अप. सुबह रोजा भी रखना है हमने. Sure. जी कामरान शेख. अस्सलाम वालेकुम. मेरी आवाज आ रही है? जी जी. जी आ रही है. जी. आई एम कामरान अहमद शेख, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट. मेरा सवाल जो है मिस आलिया से है. सिंपल है, जब इन्होंने ये बताया कि एबीए के अंदर जब हम पनिशमेंट अप्लाई कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो फाइनली हम उसे हिट करते हैं, लेकिन बच्चा जो है उसके बाद वो मेरा क्यों ये सॉरी इसके अंदर ये था कि उसको हम पनिशमेंट करते हैं, लेकिन उस बच्चे को पता ही नहीं चलता कि मुझे पनिश भी किया जा रहा है. तो उस सिनेरियो में मुझे बताइएगा. मैंने तो ये कहा था कि पनिशमेंट नहीं करना. सबसे पहला जुमला ही लिखा था पनिशमेंट की तो तरफ है ही नहीं. नहीं जाना. हिटिंग तो आप Why are डिक्शनरी you से निकाल punishing? दो भाई. किसने क्यों कहा कि पनिश कर हिटिंग रहे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए. अच्छा, आप क्योंकि बच्चे उसके को अंदर यही कहा. और तरीके से आपने कर लिया, ट्राई कर लिया बच्चे को, और हर तरह से एंटीसीडेंट बेस्ड स्ट्रेटजीज लगा ली. आपने देखा क्या ये बिहेवियर पूछ लें. इतना इम्पोर्टेंट है. सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर अगर आप कर रहे हैं ट्रीट, और वो किसी और तरह से नहीं हो रहा जिससे बच्चे की हेल्थ या सेफ्टी इशू है, ठीक है ना, तो फिर कहीं जाके, वरना अदरवाइज वी नेवर यूज पनिशमेंट. डोंट गो ऑन दैट डायरेक्शन. मैंने ये कहा था कि इट बिकम्स वेरी एडिक्टिंग फॉर यू. अगर आप पनिश करते हैं तो ये आपके लिए एडिक्टिंग बन जाता है. नेवर पनिश द चाइल्ड. पहले दिन ही आपने हाथ नहीं लगाना. तो आप क्यों पनिश कर रहे हैं? बिहेवियर क्या है ये बताइए. कामरान, आप जैसे मैंने पनिशमेंट किस चीज को कह रहे हैं? मैं यही अंडरस्टैंड मैंने किया था कि वो कह रहे थे पनिशमेंट करना चाहिए, तो मैं इसी चीज के मैंने क्यूरी रेज की है. यही थी मेरी query. तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि इस चीज को क्लियर कर दिया कि पनिश नहीं करना है हमने. बिल्कुल. कभी नहीं करना. थैंक यू. मैं अच्छा हो गया कि रीएम्फसाइज हो जी गया. जी. राइट. तो बिल्कुल. यही जी. बस मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स हैं कि आप स्टे सेफ. अपने बच्चे की हेल्थ और वेलबींग का सबसे पहले ख्याल रखें. मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है. ऑटिस्टिक बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं. अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है. अगर अर्ली इंटरवेंशन नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं. हर एज में बच्चा डेवलप करता है, हर एज में बेहतरी होती है. कभी नेवर लूज होप. ऑलवेज गो फॉर थेरेपीज. मैं थेरेपीज को सबसे ज्यादा एम्फसाइज करती हूँ ऑन ऑटिज्म अवेयरनेस डे. जितनी करा सकते हैं कराइए. नहीं कर सकते तो खुद अपने आप को ट्रेन कीजिए और करिए बैठ के. अफोर्डेबिलिटी है ना पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू है, लेकिन आप यू कैन डू इट एंड एवरी चाइल्ड कैन डू इट. दिस इज माय मैसेज फॉर यू गाइस ऑन ऑटिज्म अवेयरनेस. थैंक यू सो मच. Thank you so much to audience. Yes.